Javed Abdi Foundation, JAF, which also stands for Journalism, Advocacy and Fun. Please subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment, and share. Actually an IDIA scholar. The organization Swati is from, and he has come for all the meetings whenever we've had any meetings, JNU, जामिया, फिर जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती हैं नजरुल हमेशा वहाँ पर पहुँच जाता है. Another thing about Nazrul is that he was one of the first people to file an RTI through, when we started our workshop and work. He was the first person to actually, he not only emailed me, he emailed Venkat sir directly. And then Venkat sir was like, oh, this is so great, like we're already getting all these RTIs. So he's very very proactive and hardworking. He's a student at a leading law university here in Delhi. And I really appreciate all the hard work he puts in. Even now when we're advocating for again with the whole online education being accessible, he's always giving in his inputs. And really, thank you Nazrul, thank you for uh, being a part of our body of work. And over to you. Uh, Thank you, Shamir, for giving me this opportunity to speak and to put my views on this. So, uh, my introduction is uh, I am Nazrul Islam, and I'm a blind student in National Law University, Delhi. So, I'll just start uh, start speaking about this topic today, which because today's topic is grassroots action for disability advocacy. So I think Rights of Persons with Disabilities Act (RPWD) Act 2016 is a great achievement for the disability rights movement in India, and no doubt that it is a starting point only. It is not a destiny. It is just a starting point of uh, working towards the grassroots level to empower the persons with disabilities, and also to spread awareness among them about their rights and interests. And yeah, many organizations and groups are also working to spread awareness, and they are also trying to empower the persons with disabilities. But the main issue I found is that there is lack of, I can say, coordination in the ground level. That's why the informations which affects the persons with disabilities and their rights are not shared among the public at large. And if this has been solved, then we will achieve the most of the work we can do in the advocacy field. So the first thing we could do is let the government enact the uh, acts and policies for the welfare of person with disabilities. And we have done in 2016. That is the result of uh, uh, RPWD Act is the result of that. But the policies are really unsuccessful until it reaches to the last person of the society. And
we also have to see that if people at the grassroots level are also being aware to their rights. जैसे हम कहते हैं कि जब तक पॉलिसी देश के आखिरी इंसान तक नहीं पहुंचती है, तब तक उस पॉलिसी को हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते, क्योंकि हम एक्सेसिबिलिटी देखते हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी पे बहुत बात होती है, बहुत काम भी होते हैं, लेकिन जब तक वो चीज सिटीज से उठकर गांव तक नहीं पहुंचता है और देश के हर एक कोने तक नहीं पहुंचता है, तब तक इन चीजों का बहुत ज्यादा मतलब और बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को नहीं मिल सकता है। तो जो बेसिक फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज से ज्यादा मैं कहूँगा कि बेसिक राइट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, इन सब का वहां तक पहुंचना जरूरी है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे एडवोकेसी होने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में, ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक ये सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट या फिर जितने भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है, उन सब का फायदा, उन सब का इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और जब इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तो लोग अवेयर नहीं होंगे अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो अपने वॉइस को उठा नहीं सकते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, हमें ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है। और जब हम इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे वहां तक, जब हम कनेक्ट होंगे हर एक इंसान से, हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी से, और सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी ही नहीं, मैं कहूँगा कि उनके फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग और रिलेटिव्स जितने भी हैं, आसपास के पूरे सराउंडिंग तक ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचाने की जरूरत है। और जब उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन होगा, तभी एम्पावरमेंट की बात की जा सकती है। और जब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा तो लोग लीडरशिप के लिए तैयार नहीं होंगे। और हमें ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक लोग कम्युनिटी के अंदर से लीडर निकल के बाहर नहीं आएंगे, उभर के बाहर नहीं आएंगे, तब तक कम्युनिटी में हम कितना भी कोशिश कर लें, वो चीज हम पहुंचा नहीं सकते हैं पूरी तरह से। तो बिल्कुल बहुत सही कहा नजरुल। इस तरह से हाँ, तो इसी तरह मतलब अभी भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग मतलब कोशिश भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी के अंदर से ही लीडर्स उभर के सामने आए, जो अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी आवाज उठा सके। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं क्लास 12 में था और मेरा बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ था, तो मुझे लॉ के बारे में मुझे खुद भी नहीं मालूम था, क्योंकि उस टाइम तक तो RPWD एक्ट पास हो चुका था, लेकिन मुझे सही में मालूम नहीं था इसके बारे में कि क्या है और कैसे है। लेकिन उसके बाद मुझे IDIA इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस के साथ जुड़ने का मौका मिला। और वो एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, हर एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तक पहुंचने की कोशिश करती है। और ये एक अप्रिशिएबल वर्क है, मैं कहूँगा।
और मुझे वहीं से लॉ स्कूल में एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिला और मैं अभी लॉ स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तभी मुझे पहले से थोड़ी तो ज़्यादा समझ है कि क्या राइट्स हैं और क्या लीगल राइट्स हैं और क्या डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो सकता है और उसे रिज़ॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। और एडवोकेसी के मामले में जावेद अवधी फाउंडेशन भी पिछले 1 साल से काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जावेद अवधी फाउंडेशन से और मैं मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहता है और जब तक ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट नहीं होंगे, इनमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक मेरे ओपिनियन में हम सही मायने में किसी भी चीज़ को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बाकी इसी नोट के साथ मैं अपना एड्रेस यहीं रोकना चाहूँगा और ये टाइम मैं समीर को वापस देना चाहूँगा। Thank Okay. you. Thank you, Nazrul, so much. So, you very rightly said that, there needs to be information sharing and networking, and between grassroots level organizations, and policies will only be effective if they reach the last person that is there. JAF is a youth led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook at Javed Abdi Foundation, and you can tweet us at Rishad Shamir.